خبروں کی تفصیل۔ TSRTC ملازمین کی ہڑتال 27 دن سے جاری ہے۔ آج RTC ملازمین نے تمام ڈپوز پر احتجاج کیا۔ ہڑتال سے بسوں کا روزانہ استعمال کرنے والے مسافرین کو اپنی منزل تک پہنچنے میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ RTC کے حکام عارضی ڈرائیورز اور دوسرے ملازمین کی مدد سے چند بسیں ضرور چلا رہے ہیں۔ حیدرآباد اب بڑے شہروں بشمول نظام آباد، کریم نگر اور ورنگل میں مسافرین کو کافی مسائل کا سامنا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن انتظامیہ ریاست میں رکاوٹ سپاہ خدمات کے ذریعے مسافرین کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ حکام کی جانب سے زیادہ بسوں کے بیڑے کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسافرین کی سہولت اور عارضی کنڈکٹرز کی بے قاعدگیوں کو روکنے کے لیے بسوں میں ٹکٹ کی اجرائی کی 5500 مشینیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ ہڑتال معاملے پر تلنگانہ ہائی کورٹ میں جمعے کے روز سماعت ہونی ہے۔ اور وہی اپوزیشن پارٹیوں کے ایک وفد نے آج گورنر سوندر راجن سے ملاقات کی۔ اس وفد میں کانگریس، تلگو دیشم، TJS، CPI، CPM اور دیگر پارٹیوں کے لیڈر شامل رہے۔ وفد نے تلنگانہ میں RTC ہڑتال، ملازمین کی مانگ، حکومت کے رویے اور عوامی مشکلات سے گورنر تمیلیسائی سوندر راجن کو واقف کروایا۔ اس معاملے پر گورنر سے مداخلت کرنے کی اپیل کی گئی۔ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس 2 نومبر کو پرگتی بھون میں منعقد ہونا ہے۔ اس اجلاس کا آغاز 3 بجے سے پہر ہوگا۔ سمجھا جاتا ہے کہ حکومت پرائیویٹ خدمات کو کرائے پر حاصل کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ کے متبادل انتظامات کو یقینی بنانے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ KCR اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اس میں ہڑتال کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور عوام کو ٹرانسپورٹ خدمات کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ہڑتال کے مسئلے پر بھی ہائی کورٹ میں جاری مقدمے کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور اس سب کے بیچ ہڑتالی RTC ملازمین نے آج مرکزی مملکتی وزیر زراعت پرشوتم روپالا سے ملاقات کی ہے۔ ہڑتالی ملازمین نے کہا کہ وہ گزشتہ 27 دنوں سے ہڑتال پر ہے۔ ریاستی حکومت ان کے مسائل پر توجہ نہیں دے رہی۔ اس معاملے کو وزیر اعظم سے رجوع کرنے کو لے کر ایک یادداشت پیش کی گئی۔ ہڑتالی RTC ملازمین نے احتجاج کے دوران ملازمین کی ہوئی اموات سے بھی مرکزی وزیر کو واقف کروایا۔ مرکزی وزیر نے اس موقع پر کہا کہ کئی برسوں سے عوام کی خدمت کرنے والے ملازمین کو عہدے سے برطرف کرنا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ KCR سے مسائل کو حل کرنے کی فوری اپیل کی۔ مجھے وہاں آویدن پتر دے دیا ہے، وہ میں نے سویکار کر لیا تھا، ہمارے نیتاؤں نے مل کر مجھے بتایا ہے کہ اس میں بھارت سرکار کی اور سے ہم انٹروینشن کریں گے، راجیہ سرکار سے بات کریں گے۔ یہ سب لوگوں کو، کارکرتاؤں کو اتنا جو کامگاروں نے کئی سالوں سے جنتا کی سیوا میں اپنا جیون لگایا ہے، ان کو ایسے ہی روڈ پہ چھوڑ دینا، اس سے سنگھرش کرنے کے بجائے ان کے ساتھ بات چیت کر کے اس کا حل نکالنے کا کوشش کریں۔ ایسے ہم آپ کو شبھکامنائیں دیتے ہیں، ہم راجیہ سرکار سے آپ کی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ تلنگانہ RTC JAC کے لیڈروں نے آج جن سینا پارٹی کے صدر پون کلیان سے بھی اس سلسلے میں ملاقات کی ہے۔ ملازمین نے انہیں اپنے مسائل سے واقف کروایا اور جن سینا صدر سے مدد کی اپیل کی۔ پون کلیان نے بھی ملازمین کے مسائل پر وزیر اعلیٰ KCR سے ملاقات کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ ہڑتال سے عوام کو پیش آنے والی مشکلات پر بھی پون کلیان نے افسوس کا اظہار کیا۔ اور اس بیچ بسوں پر حملے کی بھی خبر ہے، جیسے کہ جگتیال ڈپو کی بس جگتیال سے نظام آباد جا رہی تھی کہ نامعلوم لوگوں نے کوٹلہ کے قریب بس پر حملہ کیا، بس کے شیشے توڑ دیے۔ پرائیویٹ بس ڈرائیور نے مقامی پولیس میں اس بات کی شکایت درج کروائی۔ واضح رہے کہ ہڑتالی RTC ملازمین گزشتہ 27 دنوں سے احتجاج پر ہے اور حکومت ان کے مسائل پر توجہ دینے سے قاصر ہے۔ کل ایک ڈرائیور کی موت ہوئی ہے۔ آج ہڑتالی RTC ملازمین نے ریاست بھر کے تمام بس ڈپوز پر ایک روزہ دھرنا بھی دیا ہے۔ کچھ اور اہم خبریں بھی۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے گیسٹرونومی کے زمرے میں یونیسکو کے کریٹو سٹی کے طور پر شہر حیدرآباد کے انتخاب پر بے پناہ مسرت کا اظہار کیا۔
केटीआर ने अपने ट्वीट में कहा कि शहरों के आलमी दिन के मौके पर यह एजाज शहर हैदराबाद को मिला है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को 66 शहरों में हिंदुस्तान के 2 शहरों को शामिल किया गया है। फिल्म के जुमरे में मुंबई का इंतखाब किया गया है। वाज़ेह है कि 2004 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीजन नेटवर्क का आगाज किया गया था। शहरों का ये नेटवर्क क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, मीडिया आर्ट्स, फिल्म डिजाइनिंग, गैस्ट्रोनॉमी, अदब और मौसीकी के इख्तराई शोबेजात का अहाता करता है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क ने इस कारनामे पर बल्दी नज़्म व नस्क और शहरी तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार और उनकी टीम को भी अपनी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने संगारेड्डी में महकमा जेल के पेट्रोल पंप का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर तेलंगाना पुलिस की सताइश की और कहा कि तेलंगाना की पुलिस रियासत के दीगर पुलिस के लिए रोल मॉडल है। महकमा जेल में बड़े पैमाने पर इस्लाहात का अमल जारी है। तेलंगाना के महकमा जेल के प्रोग्राम को दूसरी रियासतें भी अपना रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में महकमा जेल के 19 पेट्रोल पंप्स में 300 अफराद मुलाजिम हैं जो कि कैदी हैं। महकमा जेल की सालाना आमदनी में भी इससे लगातार इजाफा हो रहा है। 2013-14 అంటే పెట్రోల్ పంప్ ఇన్కమ్ మా జైలు ఇన్కమ్ 4 crores ఉంది, 4.5. ఇప్పుడు అంటే 20 crores ఉంది ఇన్కమ్. ఎంత పెరిగింది అది. మన ఇన్కమ్ అంటే ఆయనతో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఆయనకు మంచి పిల్లలకు ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు. ఆ సైదులు గారు చెప్పారు జైల్లో రిలీజ్ అయిన తర్వాత లోన్ ఇస్తున్నారు, ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు. మా స్టేట్లో అంటే మా అనుభూతి సీఎం గారు ఇంత చేస్తున్నారు, నాకు బ్యాంక్ ద్వారా కావాలి. షూరిటీ ఎవరు ఇస్తున్నారంటే షూరిటీ వితౌట్ షూరిటీ అయితే గవర్నమెంట్ షూరిటీ, జైలు షూరిటీ ఇస్తున్నారు. ఇంత బాగా మా ఆఫీసర్స్ మంచి పని చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు పెట్రోల్ పంప్ ఉంది 300 మంచి పని చేస్తున్నారు. లేడీస్ పెట్రోల్ పంప్ సపరేట్ ఉంది, చాలా ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు, మన స్టేట్లో ఉంది. అమ్మాయి కోసం అంటే జైల్లో ఉన్న అమ్మాయి కోసం పెట్రోల్ పంప్లో అంటే లేడీస్ పెట్రోల్ పంప్ ఉంది, ఎక్కడ లేదు లేడీస్ పెట్రోల్ పంప్. तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने विमेन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खवातीन आज के दौर में हर शोबे में कामयाबी के झंडे लहरा रही हैं। गवर्नर ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की सताइश की और कहा कि इससे खवातीन को माशी तौर पर खुद कफील बनने में मदद मिलेगी। टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, जूस मेकिंग, स्क्वैश मेकिंग, मग्गम बिजनेस contribute to the सरदार पटेल जयंती और बाबा कौम महात्मा गांधी जयंती के मौके पर हैदराबाद के कोकटपल्ली में संकल्प यात्रा का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मरकजी मुमलिकती वजीर ज़राअत पुरुषोत्तम रूपाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तकरीब में बीजेपी लीडर और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। अपने खिताब के दौरान मरकजी वजीर ने कहा कि गांधी जी के अहिंसा के उसूल को पूरी दुनिया मानती है और सरदार पटेल की जानिब से मुत्तहदा हिंदुस्तान के लिए की गई कोशिशें काबिल सताइश है। सरदार साहब को वंदना करने से एक भारत का गौरव भारतवासी के मन में पैदा होता है। जिन्होंने इस देश को एक बनाने का काम किया था, ऐसे हमारे लौह पुरुष का स्मरण करते हुए हमारे प्रधानमंत्री के कहने का एक बहुत नारा अच्छा है कि सरदार साहब ने एक भारत बनाया, अब हम सब भारतवासी मिलकर उस भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के काम में लग जाए। स्वच्छ भारत बनाए, श्रेष्ठ भारत बनाए, समर्थ भारत बनाए, इसमें हमारा योगदान हम सब दें। शादी से इनकार पर यूट्यूब चैनल चलाने वाले 3 नौजवानों ने एक लड़की के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली मुतासरा लड़की शादा सुल्ताना ने मकामी पुलिस में इसकी शिकायत की। बावजूद इसके पुलिस मामले को नजरअंदाज करती रही। मुतासरा लड़की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासती हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। मुतासरा लड़की ने कहा कि चंद दिनों से 3 नौजवान उसे हिरासा कर रहे हैं। उन्होंने तीनों नौजवानों की फौरी गिरफ्तारी का हुकूमत से मुतालबा किया। వ్యక్తి ప్రతిసారి నా వెంట పడడం, పిచ్చి పిచ్చి మెసేజ్లు చేయడం, ఫోన్లో వేరే అడ్వకేట్స్ పేరు తీసుకొని మెసేజ్లు చేస్తాడు. సార్ అర్ధరాత్రి నీకు సతీష్ అడ్వకేట్ మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు, ఈ అడ్వకేట్ మాట్లాడుకుంటున్నాడు అని అంటే నేను వాళ్ళని అడగడం జరిగింది చాలాసార్లు.
సార్ మీరు నన్ను ఫోన్ చేయమన్నారా సమీర్ కంటే లేదమ్మా అంటాడు. ఇలా నాకు ప్రతిసారి ఇలా పిచ్చి పిచ్చి మెసేజ్లు చేయడం వల్ల నేను కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సమీర్ మీద. ఇప్పటి వరకు అతనికి బుద్ధి రాకుండా నన్ను ఒక ఆడపిల్లని ఒంటరిగా చూసుకొని వీళ్ళు టార్గెట్ చేయడం జరుగుతుందండి. వీళ్ళు ముగ్గురు షర్ఫుద్దీన్, రహీం, సమీర్ అండి. వీళ్ళు ముగ్గురు కొలిడైన బాగా చిత్రహింసలకు పాల్పడుతున్నారు వీళ్ళు. हैदराबाद के मजफ्फाती इलाके पेदम्बरपेट आउटर रिंग रोड पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया. एपीएसआरटीसी की एक बस ने एक टू व्हीलर को टक्कर दी, जिसके सबब टू व्हीलर पर सवार 45 साल रंगारेड्डी और उनकी अहलिया की मौके पर ही मौत हो गई. महलूक रंगारेड्डी हयात नगर डिपो में कंडक्टर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे. हादसे के बाद मकामी लोगों और हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन ने विजयवाड़ा हैदराबाद शाहराह पर धरना दिया, जिसके सबब कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम देखी गई. ट्रैफिक बहाल करने में पुलिस को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा. जिला संगारेड्डी मेदक के नावापेट में वाक़े गुरुकुल स्कूल की तालिबा काव्या की डेंगू से मौत हो गई. लड़की के रिश्तेदारों ने स्कूल इंतजामिया पर इलाज में लापरवाही का इल्जाम लगाया. स्कूल पर काव्या के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया. मेदक रामायणपेट सड़क पर एहतजाज करते हुए रास्ता भी रोका गया. पुलिस ने मदाखलत करते हुए ट्रैफिक निजाम को बहाल किया. और वहीं आदिलाबाद जिले के मंशरियाल में भी डेंगू से खातून सोना की मौत हो गई. तफसीलात के मुताबिक उनके घर में अब तक जुमला 4 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है. पहले राजू नामी एक शख्स की मौत हुई जो कि निजी स्कूल में टीचर थे. डेंगू के सबब 16 अक्टूबर को उनकी मौत हुई. उसके बाद 20 अक्टूबर को राजू के वालिद की मौत हुई. दिवाली के मौके पर राजू की 6 साल बच्ची की डेंगू से मौत हुई और आज राजू की बीवी सोना की भी एक प्राइवेट अस्पताल में डेंगू से मौत हो गई. हैदराबाद नॉर्थ जोन पुलिस ने जुबली बस स्टेशन के करीब एक शेरख्वार को जिंदा दफनाने की कोशिश के इल्जाम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया. एक ऑटो ड्राइवर ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी. पुलिस ने करीम नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया. पुलिस ने शेरख्वार को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया. 2 अफराद से पुलिस पूछताछ कर रही है. टॉलीवुड की बुजुर्ग अदाकारा गीतांजलि का दिल का दौरा पड़ने के सबब आज सुबह के अव्वलिन सातों में हैदराबाद के एक अस्पताल में इंतकाल हुआ. उनकी पैदाइश 1947 में एपी के जिला मशरक़ी गोदावरी के काकीनाडा में हुई थी. पसमानदगान में उनके शौहर रामकृष्णा, एक बेटा ए श्रीनिवास है. उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ जबानों की फिल्मों में कई दहाइयों तक काम किया था. हिंदी फिल्म पेइंग गेस्ट से उनके करियर की शुरुआत हुई थी. उसके बाद उन्होंने अपने दौर के कई सरकर्दा तेलुगु अदाकारों के साथ काम किया. गीतांजलि ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल प्रोडक्शन की फिल्म पारस मनी में भी काम किया. चूंकि उनका नाम मनी पहले ही फिल्म के टाइटल में था, इसलिए फिल्मसाजों ने उनका नाम तब्दील करते हुए गीतांजलि कर दिया. वो नंदी अवार्ड कमेटी की रुकन भी थी. उनकी मौत पर फिल्मी सनत समेत सियासी समाजी लीडरों ने गहरे अफसोस का इजहार किया. आंध्र प्रदेश का यौम तासीस 1 नवंबर को मनाया जाएगा. मरकजी तकरीब विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में मुनक्किद की जाएगी. तकरीब में रियासती गवर्नर बीबी हरिचंदन, वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी शिरकत करेंगे. साथ ही रियासत भर में सरकारी तौर पर यौम तासीस तकारीब का इनेकाद भी किया जाएगा. आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद सरकारी सतह पर कल पहली मरतबा यौम तासीस मनाई जाएगी और इस सिलसिले में हुकूमत ने 3 दिन तक यौम तासीस तकारीब मनाने का ऐलान कर दिया है. जात पात से हटकर तमाम बरादरी के लोगों में रूहानी और अखलाकी इक़दार को फ़रोग़ देने के लिए कुरान मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है. आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा के हाथों कुरान मुकाबले से मुताल्लिक़ विजयवाड़ा में पोस्ट जारी किया गया.
यूनाइटेड फोरम फॉर कुरानिक स्टडीज की जानिब से 16 नवंबर को कुरान मुकाबले मुनक़द किए जाएंगे। रियासत भर के तमाम अजला में इन मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। इन मुकाबलों में कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात में नकद रकम के अलावा अवार्ड भी तकसीम किए जाएंगे। इनकी हौसला अफजाई की जाएगी। చిన్నతనం నుంచే వాళ్లకు దైవ గ్రంథమైన మన ఖురాన్ను పఠించాలి, వాళ్ళు ఇలాంటి దురవ్యసనాలకు గురి కాకుండా ఉండాలంటే చిన్నతనం నుంచే ఆ పిల్లలకు దేవుడు అంటే దేవుడి పట్ల భయము మరియు ఏదైతే ఒక మంచి మార్గం చిన్నతనం నుంచే వాళ్లకు అలవాటు పరచాలి అనే ఆలోచనలో భాగంగా మరి ఈ సంస్థ ప్రతి ఏటా ఏదైతే దివ్య ఖురాన్ కంఠస్థ ప్రతిభా పోటీలను నిర్వహిస్తూ రావడం జరిగింది. అది కూడా ఒక కులానికే పరిమితం కాకోకుండా కులమతాలకు తేడా లేకోకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా 13 జిల్లాలకు సంబంధించిన జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లో కూడా ఈ కంఠస్థ పోటీలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. जस्टिस राकेश कुमार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। पटना हाईकोर्ट में सीनियर जज के बतौर अपनी खिदमत अंजाम देने वाले जस्टिस राकेश कुमार का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया। सदर जमहूरिया हिंद की मंजूरी के बाद मरकजी महकमा इंसाफ ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। 13 नवंबर से पहले हलफ लेने का उन्हें हुक्म दिया गया है। 1983 में उन्होंने वकालत की तालीम मुकम्मल की थी। सन 2000 में उन्हें जज के ओहदे पर फाइज किया गया। जस्टिस राकेश कुमार 2011 में मुस्तकिल जज बन गए। 11 दिसंबर 2020 को राकेश कुमार वजीफे पर सुबकदोश हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मशवरे पर मुल्क भर में रन फॉर यूनिटी का खास एहतमाम किया गया है। विजयवाड़ा बेंच सर्किल से AR ग्राउंड तक ये रैली निकाली गई। रैली में पुलिस जवानों के अलावा तलबा और मकामी अवाम की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस दौरान तलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए जो कि अवाम की तवज्जो का मरकज रहे। इस मौके पर DGP ने कहा कि इत्तेहाद में बड़ी ताकत है, हम मुत्तहिद रहकर ही तरक्की कर सकते हैं। इस मौके पर जिला कलेक्टर इम्तियाज के अलावा विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर तिरुमल राव और दीगर ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। Celebrating this Rashtriya Ekta Divas all over the country. On this day, we remember the contributions of our Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, the contributions which he has made to make our country as one, the integration of our country. And today, our country is one of the greatest countries in the world. The kind of diversity that we have, the kind of the religion, the kind of languages, the kind of culture, the heritage that we have, and including the resilience. మరి ఐరన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలువబడే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చేసిన చర్యల వల్ల, ఆయన తీసుకున్న యాక్షన్ వల్ల మన దేశం ఒక యూనిటీగా మారడం అందరికీ తెలిసిందే. అనేక ప్రాంతాలు భారతదేశంలో కలవకుండా స్వతంత్రంగా ఉండడానికి నిర్ణయించుకున్న సమయంలో మొదటి హోంమంత్రి గారు, డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నటువంటి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ యొక్క చాలా పట్టుదలతో అందరినీ భారతదేశంలో కలిపి, ముఖ్యంగా మనం పక్కన ఉన్న హైదరాబాద్ సంస్థానం విడిగా ఉండడానికి కూడా ప్రయత్నించుకుని ఆల్మోస్ట్ 1 ఇయర్ పాటు విడిగా ఉంది. అందరినీ, అన్ని సంస్థానాలని, అన్ని ప్రాంతాలని భారతదేశంలో ఏకీకృతం చేసి ముఖ్యంగా ఇంటిగ్రిటీ అండ్ యూనిటీ ఆఫ్ ఇండియా కోసం పాటుపడ్డారు. और वहीं विशाखापट्टनम में भी रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया। रन फॉर यूनिटी में मरकजी महकमों के मुलाजमीन के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और स्कूली तलबा की बड़ी तादाद मौजूद रही। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन की क़यादत में इसका इनेकाद किया गया। ईस्ट कोस्ट रेलवे वॉलंटियर डिवीजनल मैनेजर चेतन कुमार ने सरदार पटेल की खिदमत को सराहा और कहा कि सरदार पटेल की कोशिशों से ही हमारा मुल्क मुत्तहिद हुआ। दूसरी जानिब रेलवे और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने भी रन फॉर यूनिटी का खास एहतमाम किया। Run for Unity of the country was organized as a part of the program and
tribute to our Sardar Vallabhbhai Ji Patel, who was ex-Home Minister at the time of independence of the country. He tried his best to unify more than 500 small constituencies and tried to form the unified Bharat. और वहीं कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में मुनक्किदा रन फॉर यूनिटी को एसपी रविंद्र बाबू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रन फॉर यूनिटी में पुलिस जवानों के अलावा तलबा और मकामी लोगों की बड़ी तादाद रही। एसपी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हर शहरी को चाहिए कि वो मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले, मुल्क में अमन और अमान बरकरार रखें, और इसके लिए उन्होंने शहरियों से भी ताउन की अपील की। పటిష్టపరచడానికి స్వీయ తోడ్పాటుని గట్టిగా కృషి చేస్తానని करनूल में भी करनूल पुलिस की जानिब से रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पुलिस मुलाजमीन, तलबा और दीगर ने हिस्सा लिया। करनूल एसपी ने इस मौके पर कहा कि मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर मुल्क भर में खास तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। सरदार पटेल ने मुल्क को मुत्तहिद रखने में अहम रोल अदा किया था। ఏకా దివస్ కార్యక్రమాన్ని మార్నింగ్ పోలీస్ శాఖ వారు రన్ ఫర్ యూనిటీ అనే కార్యక్రమంలో పోలీసులందరూ, యువకులు, విద్యార్థులందరూ కూడా పాల్గొంటున్నారు. ఈరోజు మార్చ్ పాస్ట్ కూడా ఉంది. మళ్ళీ బ్లడ్ చెకింగ్ కార్యక్రమం కూడా జరిగింది. మళ్ళీ ప్రతి విద్యార్థులు, పోలీసు సిబ్బంది, ఎన్సీసీ, ఎన్ఎస్ఎస్ కేడెట్స్ మరియు స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కూడా స్పోర్ట్స్ పర్పస్ ఈ రన్లో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. సర్వాయి పటేల్ సందేశాన్ని ప్రజలు పాటించాలి. ప్రజలందుక ఈ రోజు। और वहीं करनूल में संकल्प यात्रा का इख्तिताम हुआ। इस मौके पर 2K रन मुनक्किद किया गया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट टीजी वेंकटेश ने सरदार पटेल की यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने पटेल की खिदमत को नाकाबिले फरामोश करार दिया। उन्होंने करनूल में पटेल मार्ग कायम करने का भी ऐलान किया। ఆయన పుట్టిన రోజుని, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ రోజుని మనం మరవరాదు. భారతదేశాన్ని అఖండ దేశంగా తీసుకుపోయే దాంట్లో ముందు భాగంలో నిలిచారు. అదే 370 జీవో. ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి మన భారతదేశంలో ప్రతి పౌరుడు ఎలా ఉంటుందో హక్కులు, అలాంటి హక్కులు కాశ్మీర్లో కూడా కలుగజేయడం జరిగింది. ఈ రోజు నుంచి కలుగుతుందని మీకు సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. మన సివిల్ కేసులు కానీ, పోలీసు క్రిమినల్ కేసులు కానీ అంబేద్కర్ గారు పెట్టిన రాజ్యాంగాన్ని అక్కడ కూడా వర్తిస్తుందని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను। करनूल जमात इस्लामी दफ्तर में मरहूम एस अब्दुल सत्तार मनी का ताज़ियती इजलास मुनक्किद किया गया। आंध्र प्रदेश जमात इस्लामी के सदर मोहम्मद रफीक ने इजलास में शिरकत की और कहा कि मरहूम एस अब्दुल सत्तार एपी जमात इस्लामी के साबिक सदर थे। उनकी खिदमत को खिराज पेश किया गया। उन्होंने कहा कि अब्दुल सत्तार की जिंदगी कौम मिल्लत इस्लामिया के लिए मिशल राह है। उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। मरहूम अब्दुल सत्तार मनी साहब के दीनी खिदमत अल्लाह कबूल फरमाए। वो जो है पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत साल नौकरी किए हैं, मगर तहरीक इस्लामी के तारुफ होते ही एक 6 साल 7 साल का उनका और ज़्यादा वक्त रहते वक्त भी उन्होंने जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके तहरीक इस्लामी में अपना काम अंजाम दिए हैं। खुसूसन मरहूम अब्दुल सत्तार मनी साहब बरादरान वतन में काम करने में माहिर थे। तेलुगु ज़ुबान पे उनकी उबूर थी। तेलुगु ज़ुबान में उनके अशायर और उनके जो भी आर्टिकल्स है वो तेलुगु ज़ुबान के माहिरीन लोग भी जो है उनको पसंद करते थे। तेलुगु ज़ुबान में उनके कई सौओं के तकारीर भी हुए हैं। भक्ति और संस्कृति चैनल में उनके तेलुगु तकारीर को हजारों लोग जो है बरादरान वतन जो है बहुत पसंद से उनके स्पीचेस के लिए मुंतजिर रहते थे। इस्लामी में भी उनकी खिदमत बहुत ज्यादा खिदमत अंजाम दिए हैं। पूरे 2 रियासतें जब मिलके थे उस वक्त रुकने शूरा थे स्टेट के, और तेलुगु इस्लामी पब्लिकेशन ट्रस्ट के डिप्यूटी डायरेक्टर के हैसियत से भी काम अंजाम दिए, और जो है डिप्यूटी एडिटर के भी काम अंजाम दिए हैं, और जमात इस्लामी के स्टेट दावा सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी उन्होंने अदा किए हैं। इस अंदाज में जो है बरादरान वतन में एक मारूफ शख्सियत है, और तहरीक इस्लामी के लोगों में, मिल्लत के लोगों में भी एक मारूफ शख्सियत आज दुनिया से चल बसे हैं। अल्लाह ताला उनके
तमाम नेकियों को कबूल फरमाए और उनके थोड़े बहुत खामियां कुछ कोताहियां रहे तो अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए, उनको करवट करवट जन्नत अता फरमाए। तो नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा अपडेट खबरों के लिए news18urdu.com पर लॉग इन कर सकते हैं।